بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. الرحمن الرحيم. Principal sir, respected chair sir, honorable teachers and my dear friends, a very warm welcome to you all on this special occasion of Teachers' Day. I, Hajra Banu, and along with my co-host Zainab Banu from class 12, and we will be your hosts for today's program. Together, we feel truly honored to present this humble celebration dedicated to our beloved teachers, who provide us path of knowledge for us. Allah tells us in the Holy Quran, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم. Are those who know equal to those who do not know? This ayah reminds us that the people of knowledge and those who separate it hold a higher status in the sight of Allah, and who separate knowledge better than our teachers. Every year on the 5th September, Teachers' Day is celebrated to mark the birth and the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, a great teacher, scholar, and the second president of India, with the traditional rhythm of Kathas. And present this invitation with the traditional Kathas, I would like to call Brother Muni. Please welcome. يا منير ابو لي الغوده تاع الطواق كلها لا تبعدين 10 Sohail sir. A teacher is not just someone who delivers lessons, but someone who inspires curiosity, shapes character, and guides the path of knowledge. The influence of a good teacher extends far beyond the classroom, leaving an everlasting impact on the hearts and minds of the students. Now I request Riyazul Hasnain to kindly come forward and present the Qasida. Muhammad Salwa. Your hard work and sacrifice never go unnoticed. चिराग बन के जलाया है आपने हमको, चिराग बन के जलाया है आपने हमको, अंधेरों से निकाल कर रोशनी दिखाई हमको. Dear teacher, you will always remain our role model, and we will carry our teaching with us throughout our journey. Happy Teacher Day once
again, I appreciate for being here just a teacher. Thank you for being a mentor, a guide and source of inspiration. Thank you so much, and once again, happy Teachers Day to you all. Thank you so much. शिक्षकों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को प्रथम बार मनाया गया था। शिक्षक की कृपा से हम एक सफल व्यक्ति और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनते हैं। शिक्षक हमारे जीवन को संवारने में अपना अमूल्य योगदान देकर हमारा मार्गदर्शन करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो शिक्षक का महत्व यूं बयान किया है। क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलाम, मन अल्लमनी हरफन फ़क़त सय्यरनी अब्दन। जिसने मुझे एक अक्षर भी सिखाया है, उसने मुझे अपना सेवक बना लिया। इस दिन विद्यालयों में सभाएं, गोष्ठियां, कविताएं एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ साथ बच्चों को अध्यापकों के कार्यों एवं उनके मान सम्मान से संबंधित प्रेरणाएं भी दी जाती है। कई विद्यालयों में इस दिन विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य भी सौंपा जाता है, ताकि बच्चों को अध्यापक के कार्य के महत्व का आभास हो सके। इस दिन प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर उच्च आदर्श स्थापित करने वाले अध्यापकों को सम्मान देकर एवं विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि वह हमारे जीवन को दिशा और अर्थ देते हैं। सच कहा जाए तो शिक्षक ही असली मार्गदर्शक और रोशनी के स्तंभ होते हैं, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन फ़क़त सय्यरनी अब्दा। जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया, ये मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम वो अजीम शख्सियत है कि सफ़े किरतास पर, इस रोए जमीन पे अगर किसी शख्स के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या रिसर्च किया गया तो वो आपकी जात है। आज भी उनके ऊपर रिसर्च जो है वो खत्म नहीं हुआ। आप फरमाते हैं, मैं उस शख्स का गुलामी करूं जिंदगी भर की जिसने मुझे एक हर्फ सिखाई, तब भी उस एक हर्फ के सिखाने का जो सिला है वो मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा सभी मेरे स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने असातीद का दिल से आप एहतराम करें। मैंने कल की मजलिस में कहा कि अगर आप तरक्की करते हैं, अगर आप ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाते हैं, अगर आप कोई मेडल जीत लेता है, अगर आपको कोई नौकरी लग जाती है, अगर आपकी कोई अच्छे घराने में शादी हो जाती है, अगर आपका घर-बार बन जाता है, अगर दुनिया में आप किसी अच्छे मुकाम को छू लेता है, तो कितनी अच्छी बात कही आमिर खान साहब ने कि हर उस बात को तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब मैं अपने दोस्त को कामयाब होते हुए देख लेता हूं तो वो मुझसे बर्दाश्त। तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप को हमेशा एहतराम की निगाह से देखना। जिनके माँ बाप जिंदा है वो बहुत खुशनसीब लोग हैं। मैं दिल से कहता हूं, दुनिया से माँ बाप के गुजर जाने के बाद इंसान के दिलों में इतनी आरज़ुएं जो वो पनप उठता है, लेकिन खाक पर पेशानी रख के आंसू बहाने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं होता है। जब तक आपके माँ बाप जिंदा है, चाहे वो जिस शक्ल में है, जिस पोजीशन में है, बुट चमखनी मोची पे खुराना आता ही ना, इरान देना आता ही, रंठक सुखनी अपने खुराना नसम दो इरान आता ही, लुट सपोस के खनी अनेक तसम दिया दरी अमाइन दनी कम इससे मुजन्नत। तो लिहाजा सब पर स्नल्ला खुदा सहमजात मदद की अनिशकुर ली बले वालिदैन स्नल्ला की तज़मीन नियामत कुल्ला शुक्राना बस खुदा ने नियामत कुल्ला शुक्राना चीन खुदा नता चितम से
कुछ दिया अल्लाह ताला ने हमें, yang बाकी सब जो खुदा नियामत ने हमना नतिस नती दी मिक पुला अगर खुदा न खास्ता किसी हादिसा चियाऊं मिक चिक्का तो जरना या सुगा का तो के सुक्स न का तो मिगी औत का तो मेतना दे इंसान को नटी सिरस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्चा बचना समझे मिगी औत को जुख से घुमाएंगे नमे खुदा ऐसा मजा तिंगती पे जानता से कम्मत से पचाम से नियामत दे लावा आता अमा थ्रू बल्बिस गिल्पा समी लुंग शू चम चदु दे खुदा को स्मले अनिशकुरली स्नान लखनते ज़मीन नियामत को ना शुक्राना अदा बस और खुदा नियामत की सबसे बेहतरीन शुक्राने का